أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میم. وعلیکم السلام میم. کیسے ہیں سب بچے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا جی، کل کا لیسن آپ کو سمجھ میں آیا تھا؟ یس میم. چلے ہم آج کا شروع کرتے ہیں. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج انشاءاللہ ہم لیسن 11A اور B کور کریں گے. اور ہم A پارٹ میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید، یعنی کہ ہم نماز سیکھ رہے ہیں. اب نماز میں سورات بھی آ جاتی ہے نا، تو آج ہم نے ایک سورہ سیکھنی. آپ سب کو آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سب نے سیکھی ہوئی ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. اب ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو اردو سے ملتے جلتے ہیں. تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا. کل ہم نے دعائیں پڑھی تھی، یاد ہے نا سب کو؟ کون کون سی دعائیں تھی؟ کوئی بتائے جلدی سے، دیکھ کے بتائیں، کھولیں دیکھ کے بتائیں مجھے کون سی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹے، کون سی دعائیں پڑھی تھی کل ہم نے؟ ایک تھی ربنا آتینا، اور ایک اور کون سی تھی؟ اللہم اعنی. اب بک کھولے نا ساتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے کیا جی؟ وہ ہم نے اچھے سے سیکھ لی، اس کا ہم نے ترجمہ بھی دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں اس میں تھی پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ کون سے افعال کیے تھے؟ مغفرہ، خلقہ، ذکرہ، عبدہ. اور ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اس کی دہرائی بھی کر لی الحمدللہ. آج ہم نے سیکھنی ہے سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد. گرامر میں ہم فعل ماضی سیکھ رہے ہیں. اسی آج ہم کچھ نئے سیکھیں گے. ضربا، سمع، علم، عمل. جو ہم سیکھ چکے پہلے، یہ اب تھوڑے تھوڑے سے اس سے چینج ہو گئے. ٹھیک ہے، ہمیں ضربا میں تو کوئی چینج نہیں نظر آ رہا، لیکن سمع، علم، عمل، یہ اب ہم جب انشاءاللہ کور کریں گے نا پارٹ، اس میں دیکھتے ہیں یہ فرق کہاں پہ آ گیا. اور 16 ایسے 16 نیو ورڈز، نئے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں 1966 یعنی کہ 1966 ٹائم آئے ہیں. چلیے جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے. جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس پہ اوپر چھوٹا چھوٹا سا سائڈوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، مدنی صورت ہے. اس کی ڈیٹیل جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی. لیکن آپ غور کیجئے گا، جب آپ قرآن پاک کھول لیں تو اس پہ چھوٹا سا لکھا ہوگا شروع میں، یہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوتی ہے. اور اس کا نام ہے اخلاص، یعنی کوئی جو اس کو سمجھ کر پڑھے گا اس کا ایمان، اور اس پر ایمان لائے، اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اچھا جی، اب ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے، یا کوئی ہم سے پوچھ لیتا ہے، بچے تو خاص طور پہ اپنی مما سے بھی پوچھتے ہیں، بابا سے، ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے. تو آج ہمیں اس کا جواب بھی ملے گا. بہترین جواب ہے یہ جو سورہ ہے نا. تو آپ نے اچھے سے ہر کام کو چھوڑ دیں اور آپ کلاس میں بالکل اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. آج ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے اور 1/3 قرآن کے برابر ہے. جیسے آپ قرآن مجید کا 3 حصوں میں کر کے اسے ایک حصہ پورا پڑھ لیں. ہم نہیں پڑھ سکتے نا ایسے، لیکن جب ایک سورہ پڑھیں گے تو اس کا اجر، اس کا ثواب اتنا ملے گا. ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ پھر تو رات گزر جائے گی، ہم سو بھی نہیں پائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر جیسے ہم اس کو تھوڑا سلو سپیڈ میں پڑھتے ہیں تو ایک رات سے ہمیں زیادہ بھی لگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. آپ سب کو آتی بھی ہوگی، جب ہم نماز سیکھتے ہیں تو ہم یہ چھوٹی سی سورت سیکھتے بھی ہیں.
یہ ویسے پڑھنے میں بہت چھوٹی سی ہے اور یاد بھی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جیسے آپ نے قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھ لیا ہو، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھے، اور جب مغرب اور فجر کی نماز پڑھنی ہے تو 3 بار پڑھنا. یہ ایسے کیوں پڑھنا ہم نے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی کہ پڑھنا اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ہمیں انشاءاللہ سب کو، اور سنت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو یہ ڈبل ہو جائے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھائے. ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ معبود کون ہو سکتا ہے؟ اب ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کا بہترین جواب بھی آج ہم ڈھونڈ لیں گے. اچھا جی، تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اب وہ بچے ہیں جن کو یہ زبانی یاد ہے. میم ایسے زبانی سنا سکتی ہوں؟ ہاں سناؤ، ایک بار سناؤ، میں چاہ رہی ہوں سنائی کوئی بچے. زبانی سنا سکتی ہوں. ٹھیک ہے سناؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میوٹ ہو گئے ہیں بیٹا، سنائیے جلدی سے سنا دیجیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. سنا دیں، جلدی سے سنا دیں، تو پھر میں دوبارہ سے سنا دوں گی. الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور جزاک اللہ. بہت اچھے بیٹا، بہت پیارا پڑھا. آپ کیسی ہیں؟ اب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اب سب میوٹ کریں گے، پہلے ہم اس کو سیکھیں گے پھر اس کے بعد کوشچن آنسر کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اس کو سیکھتے ہیں. سب میوٹ کر لیں، جب میں کہوں کہ انمیوٹ کریں تو پھر آپ نے انمیوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. ہوا آپ نے پڑھا ہوا نا، ہوا ہم، یہ وہی والا دیکھیں. اب ہمیں قرآن مجید میں سے مل بھی رہی ہے نا جو چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، احد، احد کہتے ایک کو، اکیلے کو. ٹھیک ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو قل، قال، قالو، اس طرح کے بہت سارے الفاظ پڑھیں گے. یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے قالا نظر آئے تو 530 یعنی کہ 530 ٹائم ہمیں یہ نظر آ جائے گا. اسی طرح سے جب ہم جمع کی بات کریں گے تو 332 ٹائم یہ نظر آ جائے گا. پھر اس سے ملتے جلتے بھی بہت سارے نظر آ جائیں گے. کل کہہ دیجیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی آپ آگے پڑھیں گے نا، جب آپ اگلے جو لیسن کور کریں گے اس میں سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ اشارہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے بنا ہے. لیکن جو ہم سیکھ چکے ہیں، جیسے ہم نے سیکھا ہے فعلا، فعلو، اسی طرح سے ہے قالا، قالو، اس نے کہا، ان سب نے کہا. اچھا جی، اس میں ہم پھر آگے جاتے ہیں. احد، احد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، اکیلے کو. ایک کے معنی میں یہ صرف اور صرف احد کا لفظ ہم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے کیا جی؟ اب یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کیسے اکیلے ہیں. اب آپ نے ایسے فنگر ٹپس پہ اس کو یاد رکھنا ہے. ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذات میں کیسے ہے، کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے کوئی ریلیٹیوز نہیں ہے. جیسے ہمارے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کوئی ماما بابا نہیں ہے، بچے نہیں ہیں. اسی طرح سے ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اکیلا، یعنی کہ اللہ اکیلا ہے. صفات میں اکیلا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی غیب نہیں جانتا، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں نا کسی کی، جیسے آپ لوگ بھی دیتے ہوں گے، جیسے کسی فقیر کو پیسے دے دیے، کسی کی کسی طرح مدد کر دی. تو یہ بھی مدد ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بھی مدد نہیں کرنا چاہی تو پھر ہم بھی نہیں اس کو دے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرح مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا؟ اب حقوق، صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے،
और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की जाए। अच्छा मुझे बताएं, सजदा हम किस में करते हैं, कौन सी इबादत होती है जिसमें हम सजदा कर रहे होते हैं? चलिए बताइए, रोजा रखने में हम सजदा करते हैं या नमाज में? नमाज। नमाज में, हम नमाज में सजदा करते हैं, नमाज में। आप पढ़ते हैं ना नमाज? नमाज जरूर पढ़नी है, ठीक है क्या? यस अच्छा मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तियारात यानी कि हर तरह का जो हलाल हराम कानून साजी, जी अल्लाह को नमाज पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक हो क्या जी? हम पे फर्ज है कि हम नमाज पढ़े, ठीक हो क्या जी? हर तरह का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। अच्छा जी, अब कैसे याद रखना है? ये मुश्किल मुश्किल बातें अभी जो अभी नहीं समझ आ रही ना, उनको अभी इस तरह से याद रख ले कि हमें ये चीज याद रखनी है, अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में एक है, ठीक है? अल्लाह ताला के जैसा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की जात, सिफात, हुकूक, इख्तियारात, ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने इसको याद रखना है, ठीक हो क्या? अच्छा जी, इस जो हमने ये आयत मुबारक पढ़ी है, इसको पढ़ने के बाद हमने दुआ क्या करनी है? अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं इन सब में तुझे, यानी कि जो 4 सिफात हम पीछे पढ़ के आए ना, कि मैं अल्लाह ताला को एक मानूं, यकता मानूं। और एहतिसाब कैसे करना हमने? कि अब तक मैंने कितनी मर्तबा अपने नफ्स की मानी, यानी कि अब मैंने जो अपनी मर्जी कर ली और शैतान की मर्जी के मुताबिक मैंने काम कर लिया। अब इसके बाद जो हो गया उस पे अल्लाह ताला से तौबा करनी है और आइंदा के लिए प्लान बनाना है कि अब मैं जो भी काम करूंगी या जो भी काम करूंगा तो मैं शैतान की इताअत से बाहर निकलूंगी, बाहर निकलूंगा, ठीक है? अब मैंने शैतान का जो अमल है वो काम नहीं करना, बल्कि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म मानना है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे, मंसूबे बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। तबलीग कैसे करनी है? अच्छी बात हमने सीखी, अब हमने दूसरों को भी बतानी है, ठीक हो गया? आगे है, अब आपको लिखा हुआ नजर आए, अलिमु उक्तुबु। अब कोई एक बच्चा इसको पढ़ ले, अनम्यूट करके जल्दी से पढ़ ले। कुल हुवल्लाहु अहद। और इसका माना क्या होगा? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब म्यूट कीजिए। आगे है अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। समद कहते हैं बेनियाज, और कुरान मजीद में एक मर्तबा ये लफ्ज यूज हुआ। अब देखते हैं कैसे बेनियाज है। यानी कि हम सब, जितने भी लोग हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, हम सबको अल्लाह ताला की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं। हम सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। ये दो बातें होगी। पहले हमने 4 बातें सीखी, अब असमद में हमने 2 बातें अच्छे से याद करनी। हम सब उसी के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। इसको हम मजीद भी समझ लेंगे। अब आप देखिए अल्लाहु समद, इसी तरह से बेशक आप बनाया करें चार्ट। आपने पीछे देखा था ना, उक्तुबु, एक पेंसिल बनी हुई है, पेपर बना हुआ है, इसी तरह से आप छोटी सी डायग्राम बना के लिखिए अल्लाहु समद, फिर एक तरफ एरो लगा के लिखिए सब उसके मोहताज हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। अब कैसे इसको समझते हैं? जी जी बेटा, जब आप मैम कहते हैं फिर जल्दी से अपना क्वेश्चन भी बता दिया करें, ठीक है क्या? अब अल्लाह कैसे बेनियाज है? यानी उसे नींद नहीं आती। हम कितना जाग सकते हैं? अगर हम जैसे रात में जागते रहे, सुबह फिर हमें ज्यादा सारी नींद आ जाती है, लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह को नींद नहीं आती, उसे थकन नहीं होती। हम काम करके थक जाते हैं ना, अल्लाह ताला को थकन नहीं होती, उसको किसी की जरूरत नहीं है। यानी कि उसको जो जितने भी काम है ना, अब देखें दिन से रात, रात से दिन, कितने मौसम आते जाते हैं, कि सारे काम, इसमें अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है। जैसे अब देखें, अब हम पढ़ रहे हैं ना, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है। मैंने पढ़ाना है, मुझे आप लोगों की जरूरत है, आपने पढ़ना, आपको मेरी जरूरत है। इसी तरह से जितने भी काम होते हैं, हर काम में हमें एक दूसरे से जोड़ दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सबको अल्लाह ताला की जरूरत है। और आप थोड़ा सा अगर सोचें कि इस वक्त अल्लाह ताला करोड़ों इंसानों को, और इंसानों को चले हम एक साइड पे करें, उसके अलावा देखें कितने जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं, समुद्रों में देखिए कितनी मखलूकात, और बहुत सारी तो ऐसी भी जो हमें नजर भी नहीं आती, और अल्लाह ताला सबकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। यानी कि हम सबको अल्लाह ताला की जरूरत है।
अच्छा जी, अब आपने ज़हन में ये रखना है कि हम सब, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है, अल्लाह ताला को हमारी इस तरह से ज़रूरत नहीं है कि हम उसके काम करेंगे। हमने क्या करना है, हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अच्छा जी, अब कौन पढ़ेगा? कोई एक बच्चा पढ़े और साथ आपने तर्जुमा भी कर देना जल्दी से, और ऐसे स्माइल करते हुए पढ़ना है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, यानी कि ना उसने किसी को पैदा किया, ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया। अच्छा, हमने ना ये एक छोटा सा पहले भी एक टेबल सा बनाया था, उसमें हमने पढ़ा भी था कि माँ का माना भी हम नहीं करेंगे, ला का माना भी नहीं करेंगे, लम का माना भी नहीं करेंगे, लन का माना भी नहीं करेंगे, और हमने कहा था लेकिन जब लम आएगा तो इसका माना होगा डिड नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर डिड नॉट वाला माना लेंगे। है ये उसी तरह जैसे ला होता है ना, ये भी उसी तरह से है। इसमें हम नफी कर रहे हैं कि नहीं, अल्लाह ताला को किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया। अब आपने ये वाली जो आपने एक पुरानी आपकी स्लाइड होगी, उसमें से ये निकाल के दोबारा भी देखना है, ठीक है? फिर इसको इस तरह से याद भी कर लेना है। अच्छा जी, नहीं उसने जना, अब लम यलिद और लम यूलद दोनों के माना आपने अच्छी तरह से अलग-अलग याद कर लेने हैं, ठीक है? कि अल्लाह ताला ने किसी को ना उसने किसी को जना, जैसे हम कहेंगे कि ना ही उसका कोई बेटा है, ना उसका कोई बाप है। हम जब हम रमा तर्जुमा ऐसे याद कर रहे थे ना, तो हमने याद किया हुआ था कि इसका हमने ये कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। उसी तरह से हम याद करके ना, अब इसको थोड़ा-सा और तफ़सील से या डिटेल से थोड़ा-सा याद कर लें। ना उसको किसी ने जना और ना वो जना गया। ठीक हो गया जी। इसको, इस लफ्ज़ को याद रखने के लिए वालिद, वालिदा, वालिदैन, औलाद, विलादत, मिलाद, ये सारे लफ्ज़ हम उर्दू में सुनते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है? तो इसको इस तरह से याद रख लेना है कि यहाँ पर कोई ऐसी बात की गई है कि जिसमें अल्लाह ताला के पैदा करने की, या अल्लाह ताला ने किसी को पैदा किया, किसी ने अल्लाह ताला को पैदा किया, वो वाली बात हो रही है। अच्छा जी। अब हम अगर इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े भी हमें पता होना चाहिए कैसे होंगे। वा को अलग कर लेना, लम को अलग कर लेना, यूलिद को अलग कर लेना। लेकिन लम यालिद में हमने फिर 2 टुकड़े बनाने हैं। ठीक हो गया? ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं ना, अगर आपने पैसिव वॉइस थोड़ा पढ़ा है अपने स्कूलों में, तो ये उसी तरह से यालिद उसने जना, यूलद वो जो जना गया। ठीक हो गया? इसको हम आगे-आगे समझ लेंगे अच्छे से। अभी आप ऐसा करें कि इसका तर्जुमा इस तरह से याद कर लें, और जहाँ पे लम यलिद लिखा है, ना उसने किसी को जना, आप इसके नीचे लिख रहे हैं कि उसकी कोई औलाद नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, और वन और आगे ना वलम यूलद, और ना वो जना गया, और ना उसका कोई बाप है। इसको इस तरह से वालिदैन लिख लेंगे और भी अच्छे से याद हो जाएगी, उसके कोई माँ-बाप नहीं है। ठीक हो गया जी? ये आ भी गया है कि ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। औलाद अल्लाह की ज़रूरत क्यों नहीं है? अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला को क्यों ज़रूरत नहीं कि अल्लाह ताला के बच्चे हों। जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं। आप सब अपने मामा-बाबा के साथ हेल्प करवाते हैं ना? और अगर नहीं करवाते तो आज से पक्का सा अपने साथ प्रॉमिस कर ले कि हमने काम करना है, ठीक है? जब इंसान मर जाता है तो क्या होता है, ये बच्चे उसका काम और नाम जारी रखते हैं। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है। इन सारी चीजों की जरूरत किसको होती है? इंसानों को, ठीक है? क्योंकि इंसान थकते भी हैं, इंसान बूढ़े भी हो जाते हैं, इंसान मरते भी हैं। कि अब हम पीछे भी पढ़ के आए, यानी कि अल्लाह ताला थकता भी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमेशा रहना है, ठीक है? इंसान मरते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमेशा रहेंगे। और अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हम ये भी नहीं कह सकते, जैसे इंसानों के बारे में लिखा ना, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं, ठीक है? ना वो थकता है, ना वो बूढ़ा होता है, अल्लाह को मैं इसलिए औलाद की ज़रूरत नहीं। जी, जी बेटे। अगर आप अनम्यूट हो गए तो जल्दी से सॉरी म्यूट हो गए तो अनम्यूट करके जल्दी से अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैम, हम लोग इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि हम लोग अच्छे काम करें। अच्छे काम करें और बुरे कामों से दूर रहें। हमने पढ़ा था ना, जब हमने सूरह फातिहा पढ़ी थी कि हमने अच्छे काम करने और बुरे कामों से दूर रहना है। जो हम पीछे पढ़ के आए ना, उसको भी थोड़ा-थोड़ा ज़हन में रखना है। और अपना ये पैगाम हमने
150 यानी कि 150 करोड़ कितने ईसाइयां दुनिया में, उन तक पहुंचाना है। ये भी जैसे जैसे आप बड़े होंगे इस चीज को समझ लेंगे इंशाल्लाह। ये कौन पढ़ना चाहेगा? मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, म्यूट रखिए, सिर्फ जब आपने सुनाना है उस तरह। हाँ जी, जो है अरफा जी सिस्टर आप सुनाइए। मानिया सिस्टर जी, बेटे अगर आप कर रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपका नाम कॉल आउट करती हूँ, आप जल्दी से सुना दिया करें। ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, जल्दी से कौन सुनाएगा? लम यलिद वलम यूलद, ना इसने किसी को जना और ना वो जना गया। ना वो जना गया, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारी जो एक आया मुबारक रहेगी वो है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। लहू, याद है किसको लहू? कौन सुनाएगा टेबल जल्दी से? मैम मैं सुना लूं? सुनाए सुनाए। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और नहीं है इसका आपने बताया हम कि क्या से कोई। सुनाना है? आपने सुनाना है लहू लहुम। याद है आपको? ये याद है? लहू लहुम लका ली लकुम लना। ये हम टेबल करते हैं ना, शुरू में हमने किए थे टेबल, ये वही टेबल है। ठीक हो गया? अब हम इसको समझते हैं। अगर हम कहें आपका होमवर्क आ जाए, उसमें पूछा जाए ये लिखा हुआ है वलम यकुन, कितने टुकड़े बनाने हैं? वाह को अलग कर देंगे क्योंकि वाह का मतलब हमने पढ़ा है और, लम को अलग कर दे, इसका माना हमने पढ़ा है नहीं, और यकुन इसका माना हमने पढ़ लिया आज, इसका माना है। ठीक है, और नहीं है, ये 3 अल्फाज हो गए। ठीक है, और ये 31 टाइम ये जो यकुन इस टाइप के अल्फाज कुरान मजीद में है। अच्छा जी, ये आ गया टेबल। तो उसके लिए ये वही लहू। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह जब अपनी सूरह पढ़ेंगे ज़ा नस्रुल्लाह, उसमें भी ये वाली आयत मुबारका देखेंगे। लकुम दीनुकुम वलिया दीनी। अच्छा जी, आ गया है कुफुवन। कुफु कहते हैं बराबर बराबर जो आ जाए, इक्वल इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अल्लाह ताला का हमसर कोई नहीं है। अच्छा जी, इसको हम स्किप कर देते हैं। अच्छा जी, अहद, पहले हमने क्या पढ़ा माना अहद का? जल्दी से बताएं। अहद का हम पहले शुरू में क्या माना पढ़ के आए? कुल हुवल्लाहु अहद, एक। यकता, अब आपने क्या करना है? अब आपने अहद का एक और माना याद रख ले। अहद का माना एक भी होगा और कोई भी होगा। ये असल में यही है कि कोई एक। ठीक है क्या? अब आपने याद रखना है, पूछा जाए जी। अच्छा जी, आपने याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अहद के 2 माना कैसे, जैसे हम पूछते हैं हम के 2 माना कैसे, हम कहते हैं तारीफ और शुक्र। अगर पूछ लिया जाए अहद के 2 माना क्या है, तो आपने जल्दी से कहना है एक और कोई। ठीक हो गया? इस तरह से हमें याद भी रहेगा। अच्छा जी, और ये जो एंड पे हमने पढ़ा था ना, इसका माना ये हो गया कि अल्लाह ताला के अलावा कोई और माबूद यानी कि जिसकी इबादत की जाए हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब ये बात दोबारा से अब एक दफा रिपीट कर लें। अल्लाह ताला की अजमत ऐसी कि कोई दूर दूर तक भी ना नजर आए, और अल्लाह ताला जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में अकेला है। एक मरतबा दोहराएं, आप जरा इसको अनम्यूट करके दोहराएं। जात, सब अनम्यूट कर लें। ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में और ना इख्तियारात में। एक मरतबा फिर से। ना जात में, ना सिफात में और ना इख्तियारात में। अच्छा, इसको ऐसे याद कर लेना जैसे आप पॉइंट्स वगैरह याद करते हैं, इसको ऐसे अच्छी तरह से याद कर लेना है कि अल्लाह ताला किस में अकेला है? जात में, सिफात में, हुकूक में, इख्तियारात में। ये जो ना लिखा ना, ये ऊपर इसका क्वेश्चन भी फिर ऐसे नजर आएगा कि अल्लाह की अजमत ऐसी है कि कोई उसके बराबर बराबर इस तरह से नजर ही नहीं आ सकता कि जिसकी जात अल्लाह ताला जैसी हो, जिसकी सिफात अल्लाह ताला जैसी है, जिसके हुकूक या इख्तियार अल्लाह जैसी हो। अच्छा जी, अब हमने सोचना, क्या सोचेंगे हम? क्या मेरे जहन में कोई और भी है जिससे मैं डरती हूँ या डरता हूँ? तो डरना किससे है? अल्लाह रब्बुल इज्जत से। इस डर से गुनाह छोड़ना है कि अल्लाह देख रहे हैं। ठीक है,
किसी और से कोई उम्मीद नहीं लगानी, मैं ऐसा तो नहीं करती या मैं ऐसा तो नहीं करता, मैं समझूं कि मुझे ये जो चीज है ये इससे देनी है। जी, सिर्फ आप कहते हैं मैम, उसके बाद आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। क्वेश्चन किया करिए, मैं आंसर करती हूँ ना। अच्छा जी, किसी और को ताकतवर तो नहीं समझती या मैम, किसी और को तो नहीं ताकतवर समझता, तो डरना किससे? अल्लाह से। हर चीज की उम्मीद किससे करनी? अल्लाह से। और ताकतवर किसका समझना? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को। अब हमने दुआ करनी, क्या दुआ करेंगे? ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जाए, यानी मेरी हिफाजत कर और मेरी जरूरतों को पूरा कर। काफी हो जा का मतलब ये है कि हर चीज में अगर आपको एक छोटी सी कोई कैंडी भी चाहिए ना, तो आपने कहना कि अल्लाह ताला जी से दुआ करनी कि अल्लाह ताला मुझे ये चाहिए, और देखिएगा कि आपको वो चीज मिल जाती है। ठीक हो गया? अब ये कौन पढ़ेगा? जल्दी से पढ़ें। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और नहीं है इसका हम सर कोई। हम सर कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने किसी बच्चे ने कहा था ना कि अल्लाह ताला को नमाज पढ़ना पसंद है, तो अल्लाह ताला को जब हम दुआ करते हैं ना, वो भी बहुत पसंद है। ठीक है, दुआएं भी करनी, अपने लिए भी दुआ किया करें, सबके लिए दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं सहाबी। सहाबी कौन थे? जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे और वो मुसलमान थे। ठीक है, तब तो और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा, लेकिन सहाबी उनको कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी है, फिर वो मुसलमान भी हुए, फिर वो ईमान पर कायम भी रहे, और फिर वो इसी पर उनकी डेथ होगी, उनको सहाबी कहते हैं। एक सहाबी इस सूरह को हर रकत में पढ़ते थे, उनको ये इतनी प्यारी लगती थी, इतनी उनको पसंद थी कि वो हर रकत में पढ़ लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे इस सूरह से बहुत मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। अब जब हम ये सूरह पढ़ेंगे ना, हमारे ज़हन में ये भी बात आनी चाहिए कि ये वाली सूरत से जो मोहब्बत है, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ यही सूरह ही पढ़ी जाए। हम एक जैसे हम पहली रकत में कोई और सूरह पढ़ लें, दूसरी में ये पढ़ लें, या उसके साथ मिला के पढ़ लें। सिर्फ एक सूरत भी हम बार-बार नहीं पढ़ते ना, ज़्यादा सूरतें पढ़ते हैं ताकि हमें ज़्यादा सूरतें याद भी हो, और नमाज़ पढ़ने का ये तरीका भी सही है। और अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो, तो फिर देखिए कि हमें कितना अजर मिलेगा। कैसे, जैसे आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आप कैसे मुतासिर होते हैं? आपको उसका, जैसे अब आप किसी से मिले तो उसका बोलना, या आप उसको देखते हैं इस तरह से आपको वो अच्छा लग जाता है ना, तो आप फिर क्या करते हैं? आप उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं मैं भी कोशिश करूँ कि मैं इस जैसा बनूँ। तो अब क्या करना है कि हमने देखा कि एक सहाबी को ने अल्लाह ताला की ये जो एक सूरत थी कुरान मजीद की, इससे इतनी मोहब्बत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बशारत दे दी। तो हमने क्या करना? हमने भी उनकी नकल करने की कोशिश करनी कि हम भी उनके जैसे बने। ठीक हो गया जी? क्योंकि जन्नत तो हम सबको भी चाहिए ना। ये अल्फाज मनी का कार्ड है, इसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारा मुख्तसर सा करके, छोटा-छोटा सा करके इसमें बता दिया गया है। अच्छा जी, अब आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं पूछूँगी आपसे। कुल का माना हमने क्या पढ़ा अभी-अभी? कह दीजिए। कह दीजिए। अच्छा जी, हमने अहद के भी 2 माना पढ़े हैं। क्या 2 माना पढ़े? एक और कोई। एक और कोई। और अल्लाह एक ताला कोई। किस, हाँ जी, और अल्लाह ताला किसमें यकता है, अकेला है? 4 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ज़ात ज़ात, में, सिफ़ात में, हकूक में, इख्तियारात में। इख्तियारात में। अब सब बच्चों ने भी ये सबने याद करना है, ठीक है? इसको हमने भूलना नहीं है। चलिए जी, अब आपने पानी-शानी पीना है तो पी के आएँ जल्दी से, और अपने हाथों को ज़रा 2-4 बार ऐसे खोलें। अब हमने ईपीआई के साथ, इशारों के साथ काम करना है। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कर रहे हैं फ़ेल माज़ी। इससे पहले हमने इस्म सीख लिए, हमने हुरूफ सीख लिए, और अब हम सीख रहे हैं अफ़आल, यानी कि फ़ेल। फ़ेल माज़ी में आज हमने नए-नए टेबल बनाने हैं, ठीक है? वो कौन से हैं? ज़रबा, उसने मारा, समिअ, उसने सुना, अलिमा, उसने जाना, आमिला, उसने अमल किया। सब बच्चे ऐसे बिल्कुल ऐसे मुस्कुराएँ। ये नहीं आपने समझना ओहो! ये तो कितने मुश्किल-मुश्किल से अल्फाज़ आ गए हैं। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप लोग तो इतने ब्रिलियंट है ना, सबको इंशाल्लाह सब कुछ याद हो जाएगा। अच्छा जी, ये कौन सुनाएगा?
सुनिए से शुरू करना है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए। और कौन कौन सी चीजें हम यूज कर रहे हैं? हम अपने कान, कान, आंख, दिमाग, आवाज, आवाज, हाथ, दिल का, साथियों का। साथियों का। साथियों का कैसे? हम सब इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, तो एक दूसरे के साथी बन जाते हैं हम सब मिलके मैम इसको करते क्या हैं। पढ़ सकती हो? जी, मैं एक मरतबा पढ़ ले। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, देखिए, आप जितनी सोचिए, जल्दी बोलते मेरे इशारे हिल बोलिए, जाते हैं। बताएं, दिल से कीजिए, मिलकर और मिलकर कीजिए। कीजिए। अब एक बार मैं करती हूँ, अब आप सब, मैं जब आप बोलती है ना मैं इशारे करती हूँ, अब मैं बोलूंगी, आप सबने इशारे करने हैं, ठीक है? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये वाली स्लाइड इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी अहम है कि हम इसको हर लेसन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये समझना है ना कि कुरान मजीद में 3 तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है इस्म, जैसे नाम होते हैं ना, हमारे जैसे नाम भी हैं। और हम मुसलमान हैं, ये हमारी सिफ्त हो गई, ये दोनों चीजें इसमें आ गई। इसके बाद हमने फेल, जो आजकल पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि उसने किया, यानी कि ये पहले किया था, कभी किया था। ठीक है? जैसे आपने कोई अपनी पिछली क्लास आपने पास कर ली, ये पुरानी बात होगी, ये हम माजी की बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि ये फेल है, इसमें एक काम है, काम का करना या होना, और जमाना भी पाया जा रहा है ना। जमाना कैसे? जैसे पिछले साल की बात हो गई हो। हर हर छोटे छोटे हमने इनके साथ वो पूरे पूरे टेबल भी बनाए थे। और जैसे हम कहते हैं वा भी हर्फ है, माँ भी हर्फ है, ला भी, हम इसको सीख रहे हैं ना। तो ये जो खास हमने यहाँ पे सीखे, इसमें जिसके साथ हमने टेबल भी बनाए हैं, बी, ली, मिन और फी, और इन्ना के साथ टेबल बनाया तो नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं इसका थोड़ी सी कोशिश करके। और इसम की निशानी क्या है? हमें अलिफ, अलिफ लाम और एंड पर ये जो तनवीन नजर आ जाती है। बाकी जैसे जैसे हमने वो जमा वगैरह बनाई थी उसको भी याद रखेंगे। और वर्ड्स क्या है, ये कैसे बनते हैं? अरबी में, अरबिक में, यानी कि 3 हरूफ चाहिए फेल को, 3 लाजमी चाहिए। जैसे फा, ऐन और लाम। ठीक है? इसी तरह से हमने जो अपने पिछले लेसन में बनाई, या उससे पहले से प्रीवियस वाला जो था उसमें बनाए थे, बैक टू बैक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं ना, फिर हम समझ जाती है हम ये वाले कर चुके हैं। जैसे फाला, जाला, इसी तरह से हमने किया था फतहा। ठीक हो गया? और फिर हमने उसके बाद नसरा के साथ कौन कौन से किए थे बताए जी? जो हमने कल कौन कौन से पढ़े हैं, आज रिवीजन भी की थी। नसरा, ज़र्ब, ज़करा, फलका, अबदा। आज हमने दोहराबा करना है। ठीक है? इसी तरह से हमने 3 और भी कर लेने इंशाल्लाह। अच्छा जी, फेल माजी क्या है? जो हो गया, ठीक है, जिसमें कोई तब्दीली होगी नहीं। बाकी मुझे जो नीचे 2 लिखे हुए ना, ये जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर हम इसको सीख भी लेंगे। अच्छा जी, ये है दोहराबा, उसने मारा सामिया, उसने सुना आलिमा, उसने जाना आमिला, उसने अमल किया। हमने बात की थी कि ये एक एरोप्लेन है, ये उड़ गया, ठीक है, चला गया। अब ये हम दूर से ऐसे आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो हमें उसकी जो बैक यानी कि उसकी टेल नजर आ रही है। अब आप समझ लें कि फाला ये आपका एरोप्लेन है, ये जा रहा है, ठीक है, ये चला गया। अब क्या हो रहा है? अब हम उसकी जो टेल है उस पर थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग, जैसे अब वो जा रहा है, पहले हमें थोड़ा सा वो ज्यादा नजर आ रहा है, फिर दूर दूर दूर, ऐसी थोड़ी 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 सी तो तब्दीलियां, वही हम ये समझ के एरोप्लेन इसलिए कर लेंगे। कैसे? हम कहेंगे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक हो गया? आज का हमारा टेबल है द्वाराबा, उसने मारा, द्वाराबा, उसने मारा, द्वाराबू, उन सब ने मारा, द्वारबता, आपने मारा, द्वारबतु, मैंने मारा, द्वारबतुम, आप सब ने मारा, द्वारबतुम, द्वारबना, हम सब ने मारा। ठीक हो गया? द्वाराबा, द्वाराबू, द्वारबता, द्वारबतु, द्वारबतुम, द्वारबना। ये जैसे जैसे कलर है ना, ऊपर देखिए आप, स्किन लाइट सा कलर है, उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद ब्लू है। अब इसका ये फायदा है कि हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, द्वाराबा उसने मारा, द्वाराबा उन सब ने मारा, यानी कि अगर द्वाराबा वाला क्वेश्चन होगा तो आंसर द्वाराबा से ही हो जाएगा, द्वाराबू का होगा तो द्वाराबू से आंसर कर देंगे। लेकिन जब दरबतु होगा तो दौराबता, द्वाराबतु, ठीक है, द्वाराबतुम, द्वाराबना।
आगे से ये जो दो एक एक जैसे ना, ये हम फिर उल्टा पुल्टा इसको करके आंसर कर देते हैं। ठीक हो गया? द्वाराबा उसने मारा, द्वाराबू उन सब ने मारा, द्वाराबता आपने मारा, द्वाराबतू मैंने मारा, द्वाराबतुम आप सब ने मारा, द्वाराबना हम सब ने मारा। जी अब हैंड रेज करें, अब मैं जिसको कहूंगी सिर्फ वो अनम्यूट करेंगे। अच्छा जी, मुतहरा और अरफा, बेटे आप लोग बारी बारी कीजिएगा। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। माशाअल्लाह। जी अरफा करेंगे। मैम क्या मैं कर सकती हूँ? आपका नाम क्या है? करें, नाम बताएं और जल्दी से कर लें। हनीन और मनीहा। कर लें। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। लेकिन मारना अच्छी बात नहीं है, अब एक दूसरे को मारना नहीं है, ठीक है? हमने सिर्फ टेबल को याद करना है, ठीक है? द्वाराबा, द्वाराबू, द्वाराबता, द्वाराबतू, द्वाराबतुम, द्वाराबना। अच्छा जी, हादिया और अब्दुल मोइज, आप दोनों अनम्यूट करके आप दोनों इस टेबल को दोहरा लें। ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हम सबने मारा। माशाल्लाह। अब जो बच्चे सुना चुके हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर लें, बाकी हैंड रेज रखिएगा, ठीक है? हम अगले टेबल में हम क्वेश्चन आंसर में उनसे सुनेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अब सब अनम्यूट करें, ठीक है? और सब आंसर करेंगे। हमने कहा था मारना अच्छी बात नहीं, तो हम मार लगाएंगे कि नहीं मारा। हल द्वाराबा क्या उसने मारा? आंसर करना है। हल द्वाराबता, हल द्वाराबतुम, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब म्यूट कीजिए, ठीक है? जैसे हमने कहा ज़ैदुन से हमने बना लिया ज़ैदन, ठीक है? इसी तरह हम इसको टेबल के साथ जोड़ के कहेंगे हल द्वाराबा ज़ैदन, क्या उसने ज़ैद को मारा? जवाब में हम क्या कहेंगे? मा द्वाराबा ज़ैदन, उसने ज़ैद को नहीं मारा। अब अनम्यूट करें, सब आंसर करें। हल द्वाराबू ज़ैदन, अच्छा जी, अब जिसने कहा था ना द्वाराबा, आपने ऐसे करना है कि द्वाराबा का आंसर द्वाराबा से करना है, द्वाराबू का आंसर द्वाराबू से करना है। जो चेंज लाना है ना हमने, वो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हल द्वाराबता ज़ैदन, हल द्वाराबतू ज़ैदन, इसके माना भी साथ साथ समझ आ रहे हैं ना? हल द्वाराबा क्या उसने मारा ज़ैद को? मा द्वाराबा ज़ैदन, उसने ज़ैद को नहीं मारा। हल द्वाराबू ज़ैदन, क्या उन सब ने मारा ज़ैद को? मा द्वाराबू ज़ैदन, उन सब ने नहीं मारा। ठीक हो क्या जी? अब है सामिया, सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। सामिया, सामिऊ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। ठीक हो गया? एक बार फिर सुने। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। जी अब मोहम्मद, आगे क्या लिखा हुआ है? आपका नाम क्या है पूरा? मोहम्मद मिदाइल खान, आप और इनाया, आप दोनों इस टेबल को दोहराएं मिलके। समिया इसने सुना, उन सब ने सुना, समिअत आपने सुना,
समिअतु मैंने सुना, समय तू मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, समय ना हम सबने सुना। हम सबने सुना जी। अब आप दोनों म्यूट करें और अपने हैंड भी डाउन कर लें। अच्छा जी, मानिया, अच्छा आप बेटे आप सुनाएं, लाउड बोलना, आपने प्यारा सा टेबल सुनाए। समीआ इसने सुना, समीओ इस सबने सुना, समिता आपने सुना, समितु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सबने सुना। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जुनैरा जो है आप ऐसा करें कि अनम्यूट करें, जुनैरा आंसर करेंगी, ठीक है। हल समिआ, जुनैरा आप अनम्यूट कीजिए, और अगर आप नहीं है हमारे साथ तो मिसबा हा कर ले, हाथ या कोई तो अनम्यूट करे। हल सामिया, नाम समिआ, हम सामिया, हल सामिउ, नाम हम समिउ, सामिउ, हल समिअता, नअम नाम समिअतु, समिअतु, हल समिअतुम, नाम नअम समिअना। समिअना। सामिअना। ठीक हो गया जी। जैसे हमने ज़ैदुन से बनाया था ज़ैदन, अब अल कुरआन से हम बना लेंगे अल कुरआना। अब अल कुरआना को हम अपने डायलॉग में फिट करेंगे। कैसे? हल समिअल कुरआना, क्या उसने कुरआन सुना? क्या नअम समिअल कुरआन, अल्हम्दुलिल्लाह। हल समिअल कुरआना, नअम समिअल कुरआना, हल समिअतल कुरआना, नअम नअम समिअतुल समिअतुल कुरआन, कुरआना, हल समिअतुमुल कुरआना, नअम समिअना हम समिअनल कुरआना। कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक को पढ़ने का भी सवाब है और सुनने का भी, इसीलिए हमने नाम, ठीक है, नाम वाला आंसर लगाना। अब हमारे पास एक टेबल है आलिमा, ठीक हो गया। आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिम ना हम सब ने जाना। आप तर्जुमे के बगैर देखिएगा। अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना। ठीक हो गया जी। अब हादिया और सिस्टर शादिया, आप दोनों अनम्यूट करें और एक साथ शुरू कीजिएगा। आलिमा, अलीमा उसने अलिमा जाना, उसने जाना, अलीमु आलिमु उन सब ने जाना, उसने जाना, अलिमता अलिमता आपने जाना, आपने जाना, अलिमतु मैंने अलिमतु जाना, मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने अलिमना जाना। हम सब ने जाना। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, मुताहरा आप सुनाएं। आलिमा उसने जाना, आलिमु उन सब ने जाना, आलिमता आपने जाना, आलिमतु मैंने जाना, आलिमतुम आप सब ने जाना, आलिमना हम सब ने जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ताहा आप सुनाएं। रिवाइज अलिमा कीजिए। अलिमु अलिमा अलिमु अलिमता अलिमतु अलिमतुम अलिमना। अलिमना, ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब क्या है, पहले जो था लाम पहले था, मीम बाद में था। अब है आमीला, अब मीम जो है ना ये जल्दी से पीछे आ गया और एक और नया लफ्ज बन गया। वो क्या बन गया? आमीला उसने अमल किया, आमिलु उन सब ने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अच्छा, आप सब बच्चों ने पता है क्या ख्याल रखना है, हम उर्दू में अमल कहते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये जो करना है ना अरबी में, जब टेबल बनाना है तो हमने कहना है आमिला, इसको अमला नहीं कर देना, ठीक है। ये समिआ, अलिमा, आमिला ये एक जैसे है, ठीक है। ये बोलने में देखिए आवाजें इनकी एक जैसी आ रही है ना, तो इसको याद रखना है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया,
अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। ठीक हो गया जी। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें करें जी। ठीक है, राबील है क्या नाम है आपका? राबेल। ठीक है, आप कह रहे हैं बेटा? मैम मैं कह रही हूँ, तूबा कह रही हूँ। तूबा कह रही है, तूबा बिल्कुल करेगी। अमीला इसने अमल किया, अमीलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अब तूबा एक मर्तबा फिर ये टेबल करेगी और कहेगी उसने अमल किया, इसने अमल नहीं किया, उसने वो दूर है। ठीक है, दोबारा करें। अमिला उसने, इसने ही कहना, उसने अमल किया, वो दूर है हमें नजर ही नहीं आ रहा। उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, सबने अमल किया। अमिलता अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अब क्या करना है? अल्लाह ताला की जितनी हमें अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, हम सुनते हैं, टीचर से सुनते हैं, पेरेंट्स से सुनते हैं, उन अच्छी अच्छी बातों पर अमल करना है। ठीक हो क्या? अब मानिया, अपने जिसके टेबल है वो सिर्फ अनम्यूट करें, बाकी सब म्यूट कर दें और अच्छे से सुने। मुझे नहीं पता। आप लोग बेटा करें टेबल। आमिला, आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना। अच्छा जी, मुतहरा आप कर लें बेटे। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिस्टर शाजिया आप भी कर लीजिए, टेबल दोहराया करें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अमीला, अमीलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। ठीक हो गया जी। मोहम्मद मिजाइल जी। अमीला, अमीलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। और आप मुझे अपना नाम बताइए जरा, मुझे ऐसा लगता है मैं आपका नाम सही नहीं बोल रही हूँ। मोहम्मद मिजियाल। मिजियाल, मुझे लग रहा था, मैं तो आपको मिसाइल बना दिया। अच्छा जी। अब है लवली हनैन। अब आपने Yes, लंबी ma'am. सा टेबल सुनाना है। अमीला उसने अमल किया, अमीलू इन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सबने अमल किया, अमिलना हम सबने अमल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा टेबल हो गया। अच्छा जी, अब ये नुक्ता तालीम हमें क्या बता रहा है? हमारी छुट्टी का टाइम हो रहा है। कुछ छोटी छोटी बातें कुछ समझते हैं, उसके बाद हम फिर अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो पहली बात आपने ये याद रखनी, जब भी नाम बोला जाए मोहम्मद तो आपने जल्दी से कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान के मुअल्लिम यानी कि टीचर बनाकर भेजेंगे, तो क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? कैसे? अब हम देखेंगे कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, जो कोशिश करता है ना कि मैं कुछ सीख लूं, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं और फरिश्ते इल्म हासिल करने वालों के लिए अपने पर बिछा देते हैं उस काम की खुशी में जो वो कर रहा है। यानी कि जो इल्म सीखते हैं ना, अल्लाह ताला को कितने पसंद है कि अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, वो आसानी से जन्नत में जाएंगे। और फरिश्तों को इतना पसंद आता है कि वो अपने पर बिछा देते हैं ताकि उस छांव में बैठकर ये काम करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? रोजाना 10 मिनट निकाल के अपनी बुक को देखिए, अपनी पॉकेट बुक को देखिए,
क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब हमने क्या करना, जो हमें मालूम है, हमें पता चला, हम वो बताएंगे, ठीक है। अपने पास से कुछ नहीं कहना, जो सीखा है वो सिखाना है। इसी तरह से एक होमवर्क क्या करना है, आपने हर रोज थोड़ा थोड़ा सा इस किताब को पढ़ना जो आपको बुक्स मिली है ना, और फिर ये दुआ करनी कि अल्लाह ताला हमें उन बेहतरीन लोगों में शामिल करे जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। बेटे आपको कुछ कहना है? चलिए जी, आज हमारे पास एक प्यारा सा फूल और 11वां, अब तो हमारा प्यारा सा केक रेडी हो गया। उसकी खुशबू कैसे फैलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्या करेंगे, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा अल्हम्दुलिल्लाह। करेंगे और इंशाअल्लाह ये जितना हमने पढ़ा है इसको याद रखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह एक और हम नियत करते हैं कि हम और भी सीखेंगे और इंशाअल्लाह दूसरों को भी सिखाएंगे। आज हमारा सबक नंबर 11। आज हमने कितने अल्फाज सीख लिए? 1 से लेके 11 तक जितना हमने कुरान पार्ट सीखा, हमने ग्रामर पार्ट सीखा, उसमें हमने 131 अल्फाज सीख लिए। 232 सीखने, वो इंशाल्लाह जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि आज हमारी बार जो है ये तो 30,000 से भी देखे ऊपर आ गई है ना। यानी कि अब थोड़े से और नए अल्फाज हम अपने जो 12th लेसन होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आज का जो लेसन है इसके बाद अब आपका क्या होगा, एक रिवीजन क्लास होगी, उसके बाद आपका क्विज होना है। अब आपने उससे पहले क्या करना, अपने सारे होमवर्क कंप्लीट प्रॉफिट बुक में से अपना कुरान पार्ट, ग्रामर पार्ट, उसको एक एक मरतबा उस तर्जमे को देखिए, अल्फाज को देखिए, और जहां जहां पर हमने जो जो चीजें पढ़ी थी उनको रिवाइज कर ले। और इसी तरह से जो आप होमवर्क सबमिट कर चुके हैं उनको दोबारा खोल खोल के देखा करें। उसका फायदा ये हो जाएगा तो आपकी मिस्टेक्स जैसे अल्लाह करे ना हुई हो, लेकिन अगर हो गई कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम उसको दोबारा दोबारा से याद करेंगे, फिर वो अच्छे से याद हो जाएंगे। उसको रिपीट करना और बार बार टेबल बनाने हैं जी। होमवर्क के मार्क्स हमारे क्विज में इंक्लूडेड होंगे? बिल्कुल होंगे। आप एफर्ट करते हैं ना कि जब आपके स्कूल में आपका अच्छा सा रिजल्ट आए, तो इसके लिए भी आपने बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। और इसका तो सवाब भी होगा इंशाल्लाह। जो होता है ना दुनियावी इल्म, उसके भी फायदे हैं, और ये जो है हम सीखते हैं कुरान मजीद, इसका सवाब भी है, साथ अजर भी मिलेगा इससे, ठीक है। इसका फायदा भी है और इसका फिर आपको। अब सब मिलके सारे बच्चे एक दफा कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। आज कंप्लीट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। आप देखें हमारा कोर्स शुरू हुआ तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आधा कोर्स कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। और अब क्या है, अब हमने एक दुआ याद रखनी है और इसको करते रहना है। जब भी आपको याद आए आप करें, और इसकी कोशिश करें कि इसकी आदत बना लें। वो क्या है, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरा इल्म ज्यादा कर। और आप सबको अल्लाह ताला ने, और मुझे भी, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुंतखब कर लिया, अल्लाह ताला ने सुन लिया, इसलिए कुरान सीखने और सिखाने के लिए। तो अब हमने क्या करना है कि अल्लाह ताला की इस इंतखाब को, हाँ जी, इस इंतखाब को, अच्छा जी, मैंने तो अभी कहा ही नहीं कि मैं जा रही, मेरा तो दिल कर रहा था मैं और तरह आपसे बातें कर रही हूँ, ठीक है। चले भी, अब आप जाना चाहते हैं तो फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।